اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حاضرین گرامی، آج کے اس اجلاس میں جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی قربانیاں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین تو مجھے صحیح کہنے اور آپ تمام احباب کو میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین کرام، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تعریف خود اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں کی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تعریف خود نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے ان ساتھیوں کی ستائش کی ہے، تعریف کی ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کے فرامین سنے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی ایک ایک آیت کو امت تک پہنچایا گیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو قربان کر کے شیوے فرما برداری کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک پڑھی اور سنی جاتی رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر فوت ہوا ہو۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی رسول شمار کیا جائے گا جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملا کہ آپ کی رسالت کو مانتا تھا، اسلام پر قائم ہوا، اسلام ہی پر اس کا انتقال ہوا، خواہ وہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا بصارت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کا دیدار نہ کر سکا، لہذا ایسی دو صورتوں میں وہ صحابی رسول شمار کیا جائے گا۔ البتہ ایسا شخص صحابی رسول شمار نہیں کیا جائے گا جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے، آپ پڑھیں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ایسا بھی کہا جا سکتا تھا وَأَصْحَابُهُ آپ کے ساتھی، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، سکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، امن کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، جنگ کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، امیری کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، والذین معه جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، نبی کے صحابہ یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، نبی کے صحابہ یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے ہارڈ ہیں، رحماء بینہم یہ میرے نبی کے صحابہ
आपस में बड़े रहम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, जब भी आप इनको देखोगे या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। ये मेरे नबी के सहाबा हैं, ये बड़े मुत्तकी हैं, ये बड़े परहेजगार हैं, ये बड़े नमाजी हैं। इनके नमाज का मकसद रियाकारी नहीं है, इनके नमाज का मकसद दिखलावा नहीं है। ये नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, उनके दिल में सिर्फ एक ही चाहत है, वो ये है अपने अल्लाह को, अपने मालिक को, अपने खालिक को, अपने हाकिम को, अपने राज़िक को खुश करना चाहते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, जब भी आप इनको देखेंगे ये नबी के सहाबाए किराम के चेहरों पर सजदे के निशानात हुआ करते थे। ये देखकर पहचान लिया जाता ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम का इम्तिहान लिया है। पढ़िए सूरतुल हुजुरात, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबाए किराम का इम्तिहान ले रहा है कि उनके दिल में अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह का खौफ कितना है, अल्लाह का तक़वा कितना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबाए किराम का इम्तिहान ले रहा है। अब सवाल ये है, नबी के सहाबाए किराम इम्तिहान में फेल हुए या पास हुए? अब सवाल ये है, नबी के सहाबाए किराम को इम्तिहान में पास होने पर कितना नंबर मिला? उठाइए सूरतुत तौबा की आयत नंबर 100, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। ओ लोगों, जो लोग मेरे नबी को मानने वाले हैं, ओ लोगों जो मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, आज उन्हें हम एक बहुत बड़ा इनाम, एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट देने वाले हैं। ओ लोगों, ये इनाम हमने दुनिया के अंदर किसी को नहीं दिया। वो इनाम ये होगा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वन, अल्लाह इनसे राजी और ये सब सहाबे किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी। अजीब इत्तेफाक है, गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम इम्तिहान में पास होने पर नंबर मिल रहा है और सूरतुत तौबा की आयत नंबर ये 100 है। गोया नबी के सहाबे किराम इम्तिहान में 100 में 100 नंबर से पास हैं। मेरे भाइयों, हमें भी वो इनाम मिलेगा, हमें भी वो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन कब? नबी के सहाबे किराम को इसी दुनिया के अंदर मिला, हमें और आपको कल आखिरत के मैदान में मिलेगा। एक हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों से सवाल करेंगे, ऐ मेरे जन्नती बंदो बताओ, तुमने दुनिया में मुझे देखा तक नहीं, तुमने बड़ी तकलीफें झेली है, तुमने बड़ी परेशानियां झेली है, उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था, तुमने दुनिया में मुझे कुछ देखा भी नहीं है, लेकिन ऐ मेरे जन्नती बंदो बताओ, अब तक हमने तुम्हें जो नेमतें दे रखी है, क्या तुम इससे खुश हो? जन्नती बंदे कहेंगे, अल्लाह तूने ऐसी नेमतें हमें दे रखी है जिसका हमने कभी गुमान तक नहीं किया था, जिसका हमने कभी तसव्वुर तक नहीं किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत होगी तो बता देना, आज आपको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वन। लोगों सुन लो, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे राजी और ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी के सहाबे किराम को इसी दुनिया के अंदर इनाम मिला, हमें और आपको इंशाअल्लाह कल आखिरत के मैदान में वो इनाम मिलेगा। मेरे भाइयों, सहाबे किराम की क्या अज़मत है, पढ़िए सही बुखारी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ 3 दलीलुल क़द्र सहाबा हैं, आपके साथ अबू बकर हैं, आपके साथ उमर हैं, आपके साथ हजरत उस्मान हैं, तीनों के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े, उहुद पहाड़ लरज़ उठा, उहुद पहाड़ हरकत करने लगा। नबी ने अपने पाँव मुबारक से मार करके फरमाया, उस्बुत उहुद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। ऐ उहुद पहाड़, तू खामोश रह, इसलिए कि आज तेरे माथे पर एक नबी है। ऐ उहुद पहाड़, इसलिए कि तू खामोश रह, इसलिए कि तेरे माथे पर आज एक सिद्दीक है, इसलिए कि तेरे माथे पर आज 2 शहीदान हैं जो आगे आगे बढ़कर ये शहीद होने वाले हैं। हजरात, उहुद पहाड़ का ये हिलना, उहुद पहाड़ का ये लरसना
उहुद पहाड़ का ये हरकत करना, जहाँ नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का पता चलता है, वहीं आपके सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अज़मतों का पता चलता है। हमने आपको कहा कि सूरतुल फतह की आयत करीमा आप पढ़ें, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू, जो लोग आपके साथ हैं, अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, जो लोग आपके साथ हैं उनकी सिफत क्या है, उनकी शिआर क्या है, उनकी निशानी क्या है, उनकी अलामत क्या है। आइए दो बातें पेश करता हूँ। नबी के सहाबा अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, काफिरों के लिए सख्त थे, ये पहली तफसीर। दूसरी तफसीर, नबी के सहाबा आपस में बड़े रहमदिल थे। नबी के सहाबा कैसे काफिरों के लिए सख्त थे, आइए देखते हैं इसकी तफसीर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका बेटा अब्दुर्रहमान, बेटा काफिरों की तरफ से कुफ्र की बुलंदी के लिए लड़ने आया है, बाप मुसलमानों की तरफ से इस्लाम की बुलंदी के लिए लड़ने आए हैं। अब्दुर्रहमान के तलवार के नीचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा नहीं कई मरतबा आए, लेकिन अब्दुर्रहमान ने यह कहकर छोड़ दिया कि आप मेरे अब्बा हैं, आप मेरे वालिद मोहतरम हैं, मैं अपने बाप पर तलवार कैसे उठा सकता, मैं अपने बाप को कैसे मार सकता। जब इस्लाम लाते हैं अब्दुर्रहमान, अब्बू के सामने सारे मामलात को रखते हैं। अब्बू जान, बात ये थी, बद्र का मैदान था, मैं काफिरों की तरफ से कुफ्र की बुलंदी के लिए लड़ने आया था, आप मुसलमानों की तरफ से इस्लाम की बुलंदी के लिए लड़ने आए थे। आप मेरी तलवार के नीचे एक दफा नहीं कई मरतबा आए, लेकिन हमने आपको यह कहकर छोड़ दिया कि आप मेरे अब्बू हैं, आप मेरे वालिद मोहतरम हैं। जवाब सुने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे लाडले, ऐ मेरे प्यारे चहेते बेटे, तूने ये कहकर छोड़ दिया कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा वालिद मोहतरम हूँ, तूने इसलिए मुझे छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, अगर तू एक मर्तबा भी मेरे तलवार के नीचे आया होता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता। अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, नबी के सहाबा काफिरों के लिए सख्त हैं, नबी के सहाबा काफिरों के लिए सख्त हैं। इस्लाम के खिलाफ जो भी आया हो, चाहे बाप की शक्ल में हो, बेटे की शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, नबी के सहाबा ने उसे छोड़ा नहीं है। ये पहली तफसीर। दूसरी तफसीर, नबी के सहाबा आपस में बड़े रहमदिल थे। अब आप कहेंगे कैसे नबी के सहाबा आपस में बड़े रहमदिल थे? मुहाजिरीन हिजरत करके आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसारियों के दरमियान भाईचारगी करा दी। ये तरीका अपनाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी ने ये तरीका अपनाया। कहा अब्दुर्रहमान, आज से तुम साद के भाई, ऐ साद बिन रबी, आज से तुम अब्दुर्रहमान के दीनी भाई। हजरत साद बिन रबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ करके कहा, ऐ मेरे दीनी भाई सुनो, मैं अंसारियों में बहुत बड़ा मालो दौलत वाला शख्स हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा मालो दौलत है। सुनो, मैं अपने माल के दो हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा मैं आपको दे रहा हूँ, एक हिस्सा मैं ले रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये नबी के सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं। ये जो माल की बात हुई, नबी के सहाबा किराम ने बीबियां भी देने के लिए तैयार। साद बिन रबी ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, अरे अब्दुर्रहमान सुनो, मेरे पास दो बीबियां हैं, आप दोनों में से जिसे भी आप पसंद करें मैं उसे तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाने के बाद उससे आप शादी कर लेना। अल्लाह अकबर। ये नबी के सहाबा है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल थे, ये नबी के सहाबा हैं। एक सहाबी को अगर तकलीफ हुई, दूसरा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता था। रुहमाउ बैनहुम, ये मेरे नबी के सहाबा आपस में बड़े रहम दिल हैं। आइए कुर्बानियों का भी तस्करा करते हैं। सहाबा ने कुर्बानियां दी है, हम और आप भी जरा गौर करें। मेरी माँ और बहनें ऊपर बैठी हुई हैं, आप भी गौर करें, खवातीन भी गौर करें, आप लोग भी जरा गौर करें। ज़ैद बिन दखना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? क्या हमने इस्लाम के खातिर अपने माल की कुर्बानी दी, या हमने इस्लाम के खातिर अपने वक्त की कुर्बानी दी, या हमने इस्लाम के खातिर इस्लाम की नशर इशाअत के लिए कोई काम किया? ज़ैद बिन दखना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए। ज़ैद बिन दखना
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार मक्का ने गिरफ्तार कर लिया है। जब ये कन्फर्म हो गया अब इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जब ये कन्फर्म हो गया अब इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अबू सुफियान जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, उस वक्त इस्लाम नहीं लाए, हज़रत ज़ैद बिन दतना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, अरे ज़ैद सुनो मेरी एक शर्त है। हज़रत ज़ैद ने अबू सुफियान से कहा बताओ आपकी क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त यह है कि आप कह दो इस फांसी के फंदे पर, इस सूली पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते आपको फांसी से बचा लिया जाता। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा जुमला है। मैं अपनी ज़बान से इस अल्फाज को कह नहीं सकता, मैं अपनी ज़बान से इस अल्फाज को अदा नहीं कर सकता। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बान जाइए। मैं कहता हूँ अगर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कह देते तो उनके ईमान में दर्रा बराबर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कह देते तो उनके ईमान में दर्रा बराबर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। आदमी अगर मजबूर है, उसका दिल ईमान पर मुतमइन है, उसके ईमान में दर्रा बराबर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा जुमला है, मैं इसे अपने अल्फाज से अदा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो ये भी नहीं चाहता, मुझे तो ये भी नहीं गवारा कि नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा भी चुभे। मेरे भाइयों नबी के सहाबा किराम ने कुर्बानियाँ दी है, नबी के सहाबा किराम ने दीन इस्लाम के खातिर कुर्बानियाँ पेश की है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की पथरीली जमीन है, ऊपर से तेज धूप है, नंगे बदन है, घसीटा जा रहा है, जिस्म जल रहा है, पैर जल रहा है, घसीटा जा रहा है। सुन लो जितना सताना है सता लो, जितनी तकलीफें देनी है दे लो, लेकिन सुन लो उनकी ज़बान से ये अल्फाज अहादाद एक अल्लाह। मैं नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुझे मोहब्बत हो चुकी है, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। नबी के सहाबा किराम ने कुर्बानियाँ दी है। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दीन इस्लाम के खातिर कुर्बानियाँ दी है। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूम से आते हैं, मक्का में आए, तिजारत किया, बिजनेस किया, बहुत बड़े मालदार आदमी बन गए। और हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच चुके हैं, नबी मदीना पहुंच चुके हैं। हज़रत सुहैब नबी के पास जाते हैं, जाने से पहले कुफ़ारे मक्का से रास्ते में मुलाकात होती है। कुफ़ारे मक्का कहते हैं ऐ सुहैब कहाँ जा रहे हो? सुनो जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास माल नहीं थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, आज जब तुम बड़ा आदमी बन गए हो मक्का छोड़ के भाग रहे हो। सुनो मेरी एक शर्त है, वो शर्त ये है जो कुछ आपने कमाया है उसको मक्का के अंदर छोड़ करके जाइए। मेरे भाइयों हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा माल दे दिया। ये नहीं सोचा सफर 1 महीने का है, रास्ते में खाऊंगा क्या, पहनूंगा क्या, बाल बच्चों को जिलाऊंगा क्या। हम और आप होते तो कहते माल नहीं दे सकता, माल नहीं बता सकता, माल बहुत कीमती चीज है, कुर्बान जाइए। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पूरा माल दे दिया। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह मदीना पहुंचते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फजर की नमाज पढ़ाते हैं। हज़रत सुहैब जाते हैं, वज़ू करके नमाज में शामिल हो जाते हैं। शामिल हो जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुहैब रूमी को देखा, कहा सुहैब
रबीअतल भैया आपने बड़े फायदे मंद का सौदा किया है। मेरे भाइयों, क्या हजरत सुहैब को माल से मोहब्बत नहीं थी? क्या हजरत सुहैब को पैसों से मोहब्बत नहीं थी? सवाल यह है, उन्हें मोहब्बत थी पैसों से, लेकिन एक मोहब्बत ऐसी है कि उस मोहब्बत पर सारी मोहब्बत को कुर्बान किया जा सकता है। वो मोहब्बत है अल्लाह से मोहब्बत, वो मोहब्बत है नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा।